Hi everyone. So we have an amazing live session today, and I am beyond thrilled to have this guest on. This my live session. Uh, it, it's a privilege to have her, and I'm a big fan of her work. She's someone a complete inspiration in today's time. I won't say much about it. जब मैंने डाला था कि that I'm going to have this live session with Ami Ganatra, I think मुझे इतने सारे DM और इतने सारे WhatsApp पे messages आए that wow, we are a big fan of her, and indeed I am a big fan of her, and I think no better person to talk about spirituality, wisdom, the essence of dharma, and how we can teach all these things to our kids, better than Ami Ganatra. And she's one person who I think very easily she explains very complex matters. So that is something which I think हम सबके लिए बहुत important है, because we are laymen. We always wanted to learn and know more about our Vedas and spiritualities and Indian culture, but at times we also face difficulty in understanding that, and that's the reason, one of the very practical blockage जो हम नहीं समझ पाते, and वो education हम शायद अपने बच्चों को भी नहीं दे पाते. But she is a student of yoga and Sanskrit. She has authored 2 amazing books like Mahabharata Unraveled and Ramayan. She's someone I think we all should learn in terms of how beautifully she blends the Indian culture, the dharma, and explain it to us. So I quickly send the request to Amiji, and then I just can't wait to start this conversation. In case you have any queries, the topic is spirituality, wisdom, for our kids, that how we teach them without forcing, probably. Okay, I think 1 second, I'm just quickly sending the request. Okay. Yes. And can't wait to have this conversation with you. So today's topic is spirituality, wisdom, for our kids, for the coming generation, how they can tackle their life in a better way if, they know. Hi. Namaste. Hi, Amiji. How are you? I'm very good. How are you doing? I'm good. I'm good. And this is a fan moment for sure. Trust me, when I posted, I didn't expect it. मुझे लगा था मैं अकेली आपकी बहुत बड़ी fan हूँ, but there were so many people WhatsApping me. Oh my God, she's our favorite. We listen to her podcast and everything, and I was so overwhelmed. And I was like, none other than you can come on this, live session to talk about on this important topic for all the parents and moms out there, because you have been a student, and the way you express, you're so insightful, and you make it very complex thing बहुत आराम से आप समझा देते हो, which is I think the key for everything. That's why we want to learn more, that's why we wanted to know more. So welcome, Amiji, and please do give a little introduction and about yourself. We wanted to know as personally, क्या आपको पसंद है, how do you, आप इतना I would say ज्ञान जो आपका है, I really wanted to know the when did you felt like this is my calling and I wanted to get into it? To be honest, ऐसा कुछ भी नहीं था कि I realized this is my calling या ऐसा कुछ. I was interested. I was always interested, and I think the one thing which I've learned from my mom and in general in life, middle class household से जब आप आते हो तो कि आपको अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. I think that has always been the thing. तो मेहनत करना है, जो भी करने का निर्णय लिया है उसे अच्छे से करना है. I think that has been the thing. But it was never the case that I'm like, oh, I'm waiting to find my passion, and now I found my passion. ऐसा कुछ नहीं था. I was happily working, but while I was working as well, I had lots of questions. I had questions around what it meant to be a Hindu, because हम अधिकतर परिवारों में we are grounded. We know something about dharma. We know something about stories. ये सब पता होता है. Parantu, as you grow up, especially in academia, and then when you move out, there are lots of questions. ये narrative formation सारा हो जाता है कि आपके भगवान तो ऐसे हैं, ये तो भगवान ही नहीं है, ये सत्य भी है या नहीं है, all those things. So I also had a lot of questions around those topics, and especially when I moved abroad. I think this was around 2013.
I had people from different nationalities. और उस समय seeing how people of Indian origin behaved versus others, it was very striking. सबका अपना अपना होता है. It's not about good or bad. Yeah, there is no value judgment to it. But सबका अपना अपना एक stereotypical approach होता है problems को, चीजों को. And at that time, it struck me कि भले ही overtly I don't realize what it means to be a Hindu, that the way I'm behaving, it shows. Yeah, things like being okay with chaos, you find your way. Yeah, just being open wherever you go, you're open to new things, you're open to accepting new things. You're not like अच्छा मेरा है तो ऐसा ही होना चाहिए. You don't try to impose it on others, right? So a lot of things. And at the same time I'd read this book Being Different by Rajiv Malhotra, which talks about some of these things which I could relate to. So I think all that led to me trying to answer my own questions. And उसमें फिर as I started going deeper into the Shastras, I realized कि बहुत कुछ है जिसके विषय में समझना जानना आवश्यक है. Rather than me trying to fumble around and trying to get answers. Well, now for me, I had the luxury and the time to do this, but it's not so for everybody, right? नहीं पता चला तो खत्म. मतलब we accept what we are given, and we don't know what to accept. Also, there's so much out there. So that's how the writing happened, which was also, I always say I'm an accidental author. I did not decide that I wanted to write. A proposal came my way, and it's all Krishna Kripa. So yeah, it's all him, not me. Absolutely. I mean, everything has been a divine, be it detours or a right path. It's been that way. So, do you also think, Ami ji, के post pandemic मतलब वहां पे ज्यादा एक spirituality या एक वो इतना एक turn around point था हम सबकी life में, जहाँ पे earlier we were ना just we know भगवान एक पूजा एक part of routine था कि सुबह उठे नहाए पूजा कर ली, पर वो पूजा बस वो एक पूजा करना था. वहां पे 2 मिनट शांति से एक ओम नमः शिवाय भी आदमी एक ध्यान करके नहीं शायद बोलता था, क्योंकि लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, काम है. लेकिन शायद वो पेंडेमिक जब आया, उससे मैं बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी, कि उस टाइम पे आपको वो आप समझते हो कि वो एक गेम चेंजर था इन टर्म्स ऑफ एक अवेकनिंग जो हुई है, जो हमारे हिंदुइज्म के हिसाब से, जो हमारे साधनाओं में, जो हर तरीके से, कि हमारे एक शिफ्ट टूवर्ड्स वहां बढ़ा कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस ह्यूमन रियलिटी, which is way beyond our understanding, and there is something which we need to hold on. और ये हम में एक्चुअली जो हमारा हिंदुइज्म जो मतलब था, वो जो कि बहुत मॉडर्न था, जो हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, बट we didn't had that privilege या knowledge to probably take that part. तो पेंडेमिक एक काइंड ऑफ मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट एक ब्लेसिंग हुई एक हिंदुइज्म की अवेकनिंग के लिए, या हमारे खुद के इंडियन कल्चर के लिए, आपके हिसाब से? आई थिंक केवल भारत में नहीं, ये दुनिया भर में हुआ है, विश्व भर में हुआ है. बिकॉज पैंडेमिक में क्या हुआ ना, इट वाज वन ऑफ दोज ब्लैक स्वॉन इवेंट्स. सडनली सब कुछ बंद पड़ गया. हम लोग भागम भागी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशंस के लिए रुके हैं, थिंग्स, वी हैव वन गोल आफ्टर द अदर, एंड एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल, राइट? और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई जिसके पास पैसे थे उनका चलता रहा और जो गरीब है उनका नहीं, राइट? ऐसा नहीं हुआ. सब लोग घर के अंदर बंद थे, सबका ही जो भी बिजनेस ठप हो गया था, सबका ही काम रुक गया था. सो फॉर एवरीबडी, एक तो इट वाज अ फोर्स्ड स्टेप बैक, है ना, कि भाई फोर्स शांति, कि भाई यू हैव टू स्लो डाउन. और उस स्लो डाउन में पीपल वेंट थ्रू अ लॉट, राइट? वी सॉ डेथ, वी सॉ ग्रीफ, we saw boredom, and then when you see all of this and you feel like यार केवल पैसे से या अब तक मैं जिस चीजों के पीछे भाग रही थी, that is not enough. It's not making me happy, right? Then what is it that matters? People have lost their close ones, and people who are close to them, and they realize कि भाई इतना हम भागी कर रहे थे, थोड़ा टाइम इनके साथ दे दिया होता, अब तो बहुत लेट हो गया. So you were forced to reevaluate your priorities. You were forced to figure out what is that which actually makes me happy beyond all this paisa, job, profession, all of this, right? And that happened to a lot of people. Of course, बहुतों के लिए वो depression जैसा हो गया, but बहुत औरों के लिए it brought families together. They all thought through कि what is that purpose for your life, right? क्या है? How do you be happy? ये सब तो चलते रहेगा. So that definitely happened. And for us, I think what also really helped is that immediately when the lockdown happened, right? And actually that's the moment I had returned back to India. और तभी मोदी जी ने वापस वो रामायण महाभारत और सब कुछ शुरू कर दिया था. So I think it just took
people on a different path, है ना, कि हमने शुरुआत ही उससे करी. We went back to our past, चाणक्य, रामायण, महाभारत, and again people were free. Again people started coming together, discussing वगैरह वगैरह वगैरह. So I think we got a good start to the lockdown itself. कि भाई ये है, and we kept going down that path. So definitely, I think अध्यात्म की जब बात होती है, when you try to find meaning to your life, there is no other culture which has the depth of Sanatan Dharma, and I have no qualms accepting that. I'm very proud to say that what we have, nobody else has had. The kind of depth our ancestors went into and identified the core of the matter. I think वो हमारा बहुत खास है, और वो पता होना चाहिए, और आगे हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए. Absolutely, and I completely agree. मैं कोई कोवर्ट भी नहीं, मैं बहुत प्राउड हिंदू हूँ, मैं बहुत प्राउड सनातनी हूँ, और मैं बहुत, मतलब आज वेडनेसडे है, मैंने फास्ट रखा हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा अपने भगवान पे और अपने उन पे विश्वास रखती हूँ. और यही, एंड आई एम अ मदर ऑल्सो, एंड आई एम अ मदर ऑफ 2024. वी जब बात करते हैं आजकल, अब बच्चे भी हैं, वी हैव किड्स अराउंड विच, जिन्हें शायद मतलब बोलने में मुझे थोड़ी सी हिचक भी हो रही है और शर्म भी आ रही है कि मुझे मेरे बच्चों को शायद हिंदी बोलनी नहीं आती है मेरे, तो वो जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है. बट क्योंकि एक टाइम ये पेंडेमिक का था कि जब वो घर पे था, ये बच्चे बड़े अलग एक एनवायरनमेंट में भी इनकी परवरिश हुई है. दे हैव नॉट गॉन रेगुलर द स्कूल, वी वेंट. So I think इनको, और ये they are very fragile, they are very sensitive, they are very emotional. So I now wanted to root my questions towards spirituality and kids. How this generation kids, we as parents, we as moms, taking care of our kids, we want the best for our kids. पर हम उन्हें spirituality कैसे एक natural, organic way में दे. So my first question to you is, how do I define spirituality to kid, to my kid, and how it is different from religion? So ओके, तो पहली बात तो ना, स्पिरिचुअलिटी हम कहते हैं, हम जो संस्कृत में कहेंगे वो है अध्यात्म. ठीक है, व्हाट इज अध्यात्म? अध्यात्म इज बेसिकली सेइंग दैट व्हिच डील्स विद आत्मा. मैं अभी बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं जनरल उसका डेफिनेशन देने का प्रयत्न कर रही हूँ, राइट. डील्स विद द आत्मा इन द सेंस दैट हम सबके अंदर देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी. अभी तक तो क्या है, हमारा सारा जो फोकस रहा है वो क्या है कि ज्यादा पैसे, ज्यादा सुंदर दिखना, दिखावा, है ना, नई बड़ी कार, बड़ा घर, यही चलते रहता है. बट ये सारी चीजें जो हमने पैंडेमिक में देखी कि दीज आर ऑल टेम्पररी, और ये होने के बाद भी डजंट मीन यू आर हैप्पी. देन व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट? देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट. देयर इज समथिंग टू डू विद योर इमोशंस which are not necessarily related to your physical life. It is something inside. अंदर आप खुश हो तो सब अच्छा है. जैसे आप देखो कितने सारे लोगों के पास जो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं होता, पर शांति से रहते हैं, खुश रहते हैं, बिल्कुल, चेहरे पे चमक होती है. और पैसे वाले होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता. So what is that, right? Something beyond the physical. Now, how do you introduce that to kids is the question. And second thing you asked, how is it different from religion? For us, I don't think we need to bother about it, at least for Hindus. True. Currently, हमारा अध्यात्म और रिलीजन में कोई फर्क नहीं है. जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, इवेंचुअली दे आर मेंट टू टीच अस दैट. दे आर मेंट टू टीच अस टू, दे आर मेंट टू टेक अस टू अध्यात्म. अगर आप गीता भी सब देखो तो उसमें कृष्ण वही कह रहे हैं ना कि सगुण निर्गुण दोनों होता है. सगुण जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं वगैरह वगैरह. और जहां तक बच्चों की बात है ना, आप उनको कहोगे अरे ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा के लिए करो. For them it's all abstract. It doesn't make sense. उन्होंने अभी तो समझा कि ये जो मुझे दिख रहा है ये मैं हूँ, है ना, ये मेरी माँ है. तो उनको अभी से हमको कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है. उनको केवल इतना पता होना चाहिए कि जीवन में एक तो सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है, एंड देयर समथिंग बियॉन्ड अस. एक तो हमारे पेरेंट्स है ना, जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं. वो बच्चों को होता है ना. आप कभी भी देखिए कि आज अगर हमको कोई कहे कि तू पेड़ से जंप मार, तो हम नहीं मारेंगे. पर आपका बच्चा होगा, वो पेड़ पे बिठा दोगे और उसको कहोगे कि भाई तुम जंप मारो, उसे पता है कि मम्मी पापा पकड़ लेंगे, है ना. वो विश्वास है, वो क्या है, वो श्रद्धा है कि जब तक वो है तब तक मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है. यही जो है हमें उसे बताना है कि ये तो पॉजिटिव है. ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहो वो ना मिले, तब भी चीजें खराब नहीं होगी है, कुछ और अच्छा मिलेगा, है ना. दिस माइंडसेट हैज टू कम. नाउ हाउ डज दैट कम? जब वो शुरुआत से घर में थोड़ा देखते हैं कि भाई अच्छा ये हम इनको तो भगवान बोलते हैं, भगवान कैसे है, ये सुपर हीरो जैसे हैं. यू स्टार्ट विद दैट, राइट, कि और वो कैसे होगा जब वो देखेंगे आपको करते हुए. थोड़ा रिचुअल्स डजंट हैव टू बी टू मच. सबका परिवार का अपना अपना होता है.
किसी किसी के यहाँ ज्यादा होता है, किसी किसी के यहाँ कम होता है, दैट्स परफेक्टली ओके। पर एक चीज जो उनको नहीं बोलनी चाहिए वो ये है कि भाई प्रश्न मत पूछो, बोला है उतना करो, ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पेरेंट्स टेक द पेन्स, फिगर आउट, करेक्ट। समझाओ उनको, है ना, वो आवश्यक है। और साथ साथ सबसे पहली बात तो जब अध्यात्म की बात होती है, और जो अगर गीता में भी देखें, तो द स्टेप टू अध्यात्म इज थ्रू सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब फिर बच्चे का क्या सेल्फ कंट्रोल, उसको तो हम जितना बता रहे हैं वही होगा, जिद होगी तो भी बच्चे की होगी। परंतु फिर अगर सेल्फ कंट्रोल सिखाना है तो क्या सिखाना है, डिसिप्लिन सिखाना है। आई थिंक अपने पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स, मतलब आज जब हम लोग पेरेंट्स हैं और हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन से लाठी मारी है ना, डिसिप्लिन सिखाया है। ऐसे नहीं था कि मैं कहूँ कि मम्मा मेरे को आज आइसक्रीम चाहिए तो आज आइसक्रीम मिल जाएगी। बिल्कुल आज के बिल्कुल बच्चों को ऐसा नहीं है, बोला वो हाजिर, बोला वो हाजिर, है ना, बिल्कुल बिकॉज लाइफ स्टाइल हैज इम्प्रूव, पैसा है, सब कुछ है। करेक्ट सो वी आर नॉट अलाउिंग देम टू हियर अ नो। करेक्ट व्हाई आर चिल्ड्रन बिकमिंग सो सेंसिटिव? या जो आपने कहा ना कि आज बिल्कुल के बच्चे बहुत फ्रेजाइल है, sensitive है, बिल्कुल क्यों? बिल्कुल हम उनको मिट्टी में भी नहीं जाने देते, उसमें तो भी पकड़ ले आते हैं। हमको लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा गंदे बच्चा, अगर हाँ कोई कुछ कह ले, टीचर ने डांट दिया तो जाके पेरेंट्स सामने बैठ जाएंगे कि आपने कैसे कह दिया। ट्रू इस प्रकार आप बच्चे को क्या बता रहे हो, हम उनको ये बता रहे हो कि भाई तुम तो बहुत स्पेशल हो, ट्रू है ना, तुम स्पेशल हो, तुम महान हो, यू आर द प्रायोरिटी कम व्हाट मे। या अब वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब समाज में जाता है, तो उसको तो वही ट्रीटमेंट की अपेक्षा है ना, ही एक्सपेक्ट बिल्कुल सेम थिंग। या पर समाज इसको वो नहीं देने वाला है, भले आप कितने ही उनको लाड प्यार से बड़ा करो, है ये ना, बात है समाज में तो ही जस्ट अनदर किड लाइक एवरी अदर किड। या और फिर वो जब वो जो अपने लिए एक जो इमेज है वो भंग हो जाती है, ट्रू एंड थिंग्स become difficult. So then what is it? The issue is not so much about adhyatma as it is about discipline. ट्रू Discipline will eventually lead to adhyatma. या Okay, but the first is discipline. Now what? Discipline in what sense? आप ये कहो कि भाई इतने बजे तो सुबह उठना है, ठीक है, एग्जाम है तब, छुट्टियां हैं तब, अलग चीज है। कुछ कुछ चीजें कि भाई भगवान को नमस्ते करके तो जाना है, क्यों करना है ना, फेस्टिवल है तो ऐसा तो करना ही है, सिर्फ वीडियो गेम खेलते बैठे हो ऐसा नहीं। इवन इफ यू कैन अफोर्ड, यू टेल देम दैट हर चीज में हाँ नहीं होता है, ना भी होता है, एंड इट्स ओके, you can hear a no, right? एब्सोल्युटली And they need to realize that happiness is also not just in ट्रू things, it is ट्रू beyond the ट्रू things. वो सब तो पेरेंट्स आजकल, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो सो बिजी ना, तो ऐसा है कि फोन पकड़ा दो हम शांति से खा ले, थोड़ा सा चीजें दे दो तो हम शांति से रह सके। आई अंडरस्टैंड, आई थिंक इट्स नॉट इजी टू बी अ पेरेंट टुडे, but we will have to do what we have to do, करेक्ट करेक्ट and that, and also it's not so difficult, it's not so difficult. पहली बात तो I would say it's important to at least learn and speak your own language for the for the betterment of the betterment of kid. the kid I आप देखिए, आप और मैं जब बड़े हो रहे थे, तो मैं मुंबई में बड़ी हुई हूँ, एक साथ हम चार चार भाषाएं बोलते सीखते बड़े हो गए विदाउट एनी टेंशन। करेक्ट और ये नहीं था कि भाई इंग्लिश नहीं बोलोगे तो मार पड़ेगी, आजकल तो वैसा हो गया। दैट इज एक्चुअली मेकिंग आवर बच्चा स्टूपिडर देन व्हाट दे एक्चुअली हैव इट। सो agreed एनीवेज आई लेट agreed यू टॉक, no, no, मैं मेरा no, मोनोलॉग शुरू हो absolutely. गया। I think we wanted to hear you and your wisdom and insight. So, absolutely rightly said, discipline is very important. And in my practices also, like I am very specific when my son goes to school. He knows, I think, everything about a 7-year-old kid should know. I think more than that when it comes to spirituality. एंड आई एम वेरी प्राउड मदर इन दैट सेंस। मैं मेरे को बड़ी अच्छा लगता है मेरे को उसको मैं मन, क्योंकि मैं खुद करती रहती हूँ, वो मुझे देखता रहता है। बहुत सिंपल है, मतलब मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ, वो एग्जैक्टली मुझे ये सबसे बड़ी बात है। हम बच्चे, हम कहते हैं वो नहीं करते हैं, हम जो करते हैं वो करते हैं, बिल्कुल है मैं ना। जो हम करें कुछ, करे कुछ, उन वो लोग बहुत शार्प शार्प होते करेक्ट हैं, बहुत ज्यादा, करेक्ट तीस थिंग्स है। सो करेक्ट सो बिल्कुल। और दूसरी चीजें हम जो ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस जो होते हैं, इतने क्वेश्चंस, उन सबके आंसर्स देना मुझे लगता है एक मेरा एकदम जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड आई कैन नॉट से नो, नो मैटर मैं कितनी बिजी हूँ, मुझे अंदर से अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, पर मुझे लगता है नो, दिस इज माई ड्यूटी टू आंसर। If not, I have to find an answer and tell him. I think that's very important. Another question I would come: how do we inculcate, like you talked about discipline, how do we inculcate a feeling of spirituality in the kids without forcing? So I understand, like my son is little in terms of what he watches and do, but his friends are not. वो नहीं सब मतलब
उनको शायद जैसे मेरे बेटे को शायद दक्ष की इनकी कहानियां पता है, मैंने वेद पता है उसको बहुत, क्योंकि उसको शायद इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है उसको, इतिहास में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो करता भी है, उसको मजा आता है जितनी उसकी लिमिटेशंस उसमें। पर सारे बच्चे ऐसे नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे हर माँ को ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का एक एंकर है, और अगर उसकी शुरुआत हो जाती है एक डिसिप्लिन की, अगर एक एंकर है कि बच्चे जो है वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो हम ऐसे क्या उनमें कुछ हाउ डू वी इनकलकेट दिस फीलिंग एंड नॉट फोर्स देम? एक तो मैम आई डोंट थिंक एवरी मदर फील्स दैट वे, हाँ, इसीलिए तो नहीं हो पाता ना। उनको लगता है अरे नहीं नहीं, रिलीजन मत सिखाओ, ये मत सिखाओ, वो मत, वो कर लेंगे। But yes, you are right. that is true. I'm aware, right? I know my own people who would be like, एक्चुअली हम लोग को कल्चर तो सिखाना है, बट हमको कोई श्लोक वोक नहीं सिखाना, हम उनको रिलीजन इम्पोज नहीं करना चाहते। अरे आप, यू आर टेकिंग अवे समथिंग फ्रॉम योर चाइल्ड विच इज एक्चुअली हेल्प हिम डेवलप बेटर, राइट? आपके बच्चे को अगर आप कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ाते हो, प्रार्थना कराते हो, तो इट इज नॉट रिलीजन. व्हाट यू आर टीचिंग हिम टू बी ग्रेटफुल, यू आर टीचिंग हिम टू हैव श्रद्धा ऑन समथिंग एल्स बियॉन्ड यू, यू आर टीचिंग हिम to deal with things as they come, right? And have the humility कि भाई सब कुछ आप नहीं हो, आप महान नहीं हो, है ना? आप में जो कुछ है वो कहीं और से आ रहा है। माँ बाप को जैसे भगवान को तो प्रणाम करो ही, पर दादा दादी है तो उनको पैर छुओ, मम्मी पापा को पैर छुओ, कोई बुरा नहीं होता है इसमें। वो ह्यूमिलिटी भी हमें ही सिखानी पड़ती है, पहली बात तो वो। दूसरी बात, अब जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं, एंड माय भाभी इज एक्चुअली रशियन, यूएस में वो रहते हैं, बट बोथ ऑफ देम इंसिस्टेड कि उनको अपनी अपनी भाषा आनी चाहिए, ठीक है? सो जब बच्चों को, हमारे यहाँ तो इवन देसी पेरेंट्स दोनों हो तो भी सिर्फ पेपा पिग और ये सब दिखाएंगे, वो लोग भी देखते हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर वी एंश्योर्ड बचपन से कि हमारी वाली भी कहानियां, गुजराती पोएम्स, ये सब भी चले साथ साथ, है ना? फिर वो देखते हैं कि अच्छा कृष्ण की कहानियां या हनुमान जी की कहानियां, एंड दीज आर वेरी फैसिनेटिंग स्टोरीज फॉर किड्स, राइट? तो उनको बहुत पसंद है, और आजकल तो वो ऑप्शंस भी है, आजकल ये बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हम जब वेस्टर्न ये दिखाते हैं तो दिखाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, है ना, पर अपना भी तो दिखाइए। देन दे कनेक्टेड टू, अच्छा हमारे मंदिर में वो मूर्ति है ना, उनकी ये बात हो रही है, उनमें वो शक्ति है। तो मेरे जो भतीजे भतीजे हैं, उनको तो हनुमान जी से ये लगता है कि भाई शक्ति चाहिए, कभी डर लगेगा ना तो मेरी मम्मा ने उनको कहा है, दादी ने कहा है कि आपको डर लग रहा है, हनुमान जी को याद कर लो। तो हमेशा हनुमान जी मने शक्ति आप ऐसे करके दे दो समथिंग, है ना, कि भाई याद कर लेंगे। हाउ एल्स यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ connection, right? And it is not just connection, it is also helping them कि भाई डर लग रहा है तो भाई आप इस शक्ति को याद कर लो, and I feel energized, right? जितना हम नहीं कर पाते बच्चे उतना कर पाते हैं। The other thing I would really say is that सब कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल हम बच्चों को बहुत सारे क्लासेस में भेजते हैं, है ना? एक चीज आई वुड टेल पेरेंट्स कि आपके आसपास अगर बाल विहार है, चिन्मय मिशन का केंद्र है, आरके मिशन का कोई केंद्र है, सत्य साई का है, जो भी है ना, जो बच्चों को ये कहानियां सुनाता हो, ऐसे कुछ कुछ चीजें सिखाता हो जो आपके संप्रदाय अनुसार या आपकी मान्यता अनुसार ठीक हो, उस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस है। संघ के बाल विहार वगैरह होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक तो यू नो द ओनली वन हैविंग टू गिव ऑल द आंसर्स, दूसरा द चाइल्ड डजंट फील इट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। करेक्ट। आप जब केवल घर पे कराते हैं, और बाकी सारे आजकल तो बड़े बड़े आईसीएसई स्कूल्स वगैरह में पेरेंट्स का कुछ अलग ही एटीट्यूड होता है, वहां जब बच्चा जाता है तो उसे लगता है मैं ऐसा क्यों, मुझे क्यों ये सब करने लगा है, मेरे फ्रेंड का तो नहीं है। पर अगर वैसे भी कम्युनिटी साथ में है कि अच्छा चिन्मय मिशन जा रहा है, बचपन में तो जाएंगे। अच्छा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहे, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, उनका खुद का कैरेक्टर वगैरह होता है, बट व्हेन दे गेट इंट्रोड्यूस्ड टू समथिंग, राइट, समथिंग दैट दे कैन कनेक्ट बैक टू देयर आइडेंटिटी, टू देयर कल्चर, आगे चल के लाइफ में they will know कि there is another path that exists. I'll give you one incident, not an incident actually. मेरी एक बार गौर गोपाल दास जी से बात हुई थी इस बारे में, और हम लोग को वही लग रहा था कि भाई जो टीनेजर्स हैं उनको कैसे कनेक्ट करें। हम लोग वहाँ कुछ we used to run some organization in विचार अमृत मंथन करती हांगकांग में, तो हम पूछ रहे थे कि कैसे कनेक्ट करें बच्चों को, तो फिर भी आ जाते हैं, पर जो बड़े हैं 16 से 18 या इवन 15, 14, 15, उनको बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड वी वर आस्किंग हिम कि आप लोग कैसे करते हो? सो ही सेड देखो, once the kid is 13, 14 plus, then it is very difficult to get them to do something which others are not doing unless they themselves are interested. पर he said कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब बचपन में बच्चे हमारे आए होते हैं ना 6, 7, 8 वर्ष की आयु में, तो वो संस्कार तो मिल जाते हैं, बहुत खेलते कूदते, है ना,
संस्कार तो मिल जाते हैं. He said फिर वो लोग जब 24-25 वर्ष के होते हैं, when reality strikes, है ना, things are not always going their way. Yeah. It is not only about friends. Then you realize कि भाई there are problems in life. Office में गए हो, ये है वो है. Then there will be others who go down the drinking drugs path. Yeah. Correct. But Yeah. these people know that there is a sanskar, there is something. We can look back and go to that as well. So he was saying कि इसलिए बचपन से वो संस्कार होना जरूरी है. कैसे भी करो, send to, especially have these community groups which you can send your kids to. एक आध दिन होता है संडे या सैटरडे, जो भी एक आध घंटा है ना. आई वुड डेफिनेटली एनकरेज parents, especially parents today, to do that. In fact, we got a question wherein the question was the schools, if you can suggest some schools for kids which impart Vedic knowledge along with some, modern curriculum. So I think आपने उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया कि बिल्कुल स्कूल जाएं और उसके बाद एक ये हफ्ते की कोई भी साथ एक साथ में क्लास ले करें. जाने. आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू. आई थिंक वहां पे उन्हें एक एक्सपर्ट और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझाया जाएगा विच विल बी एज अप्रोप्रिएट एज वेल. ऐसा नहीं है कि 5 साल के बच्चे को कुछ 20 साल की बात समझाई जा रही जो नहीं समझ में आएगी, तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम शायद उतने अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाए. एग्जैक्टली. अच्छा, दूसरी बात है, आई वुड से आप बच्चों को सिर्फ भेज मत दो, ensure that you go with them, है ना. जैसे आई रन गीता क्लासेस एंड स्टफ फॉर एल्डर्स. कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि भाई आप हमारे 10-12 साल के बच्चे उनको भेजें. मैंने कहा ठीक है आप भेजो, इवन रामायण महाभारत के लिए, बिकॉज वो तो मजा आता है रामायण महाभारत की तरफ. बिल्कुल. बट आई टेल देम पेरेंट्स, आप एक जन तो साथ बैठो, नहीं तो क्या होगा, मैं कुछ बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग फिर कुछ और बता दोगे, वो बच्चे का और भी कचरा बन जाएगा दिमाग में, है ना, और वो रायता बन जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. बी देयर विद द किड, है ना. एंड इट्स अ बॉन्डिंग टाइम ना, आप साथ कर रहे हो, फिर आपको उससे और बात करने का अवसर मिलता है, डिस्कस करने का अवसर मिलता है, साथ में पढ़ने का अवसर मिलता है. तो इट ऑल्सो कनेक्ट पेरेंट्स. दीज एक्टिविटीज हैव टू हैपन टुगेदर. या तो दादा दादी, नाना नानी, या तो पेरेंट्स, या तो अंकल आंटी, जो भी हो उस प्रकार से. दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, which I think my mom did extremely well, so I'm going to give you her suggestion. हम जब बड़े हो रहे थे तो आई लव्ड रीडिंग एंड माय मॉम स्पेशली आल्सो वाज वेरी वेरी वेल रेड. मम्मा ने क्या किया था, हम लोग अंग्रेजी की पुस्तकें तो होती थी, बट साथ साथ गीता प्रेस गोरखपुर अभी भी उनकी है, बट उनकी बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है, सस्ती सस्ती. अभी तो पता नहीं कितने की होगी, बट अभी तो 2-3 रुपए की होती थी. दैट ऑल्सो शोज दैट आई एम ओल्ड इनफ, इट वाज सो मेनी इयर्स अगो. बट एक दो पुस्तकें होती थी, वीर बालक, वीर बालिकाएं, है ना, देवियां वगैरह, ऑल दीज थिंग्स. अब तो यू सी दिस in other publications as well, but you would have heroes coming from this culture, है ना. फिर उसमें पुराणों से कथाएं होगी, वो ध्रुव की कथा होंगी, फिर वो श्रवण कुमार की कथाएं होंगी, इस प्रकार से. where you also, of course these are interesting stories, but you're also setting some kind of instilling some kind of value systems true into the बच्चा. This is how it should be, right? और वो आप साथ पढ़ रहे हो. आजकल सारे माँ बाप जो है वो रात को पढ़ते तो है ना साथ. Reading is a thing which people do, but we only end up reading stories and books which look very fancy and come from outside. I think it is important that these stories become a part of it. I'm not saying don't do that. I'm saying include this as well. And it actually is a lot of fun. हमारे लिए भी अच्छा है, हमें भी मजा आए. Absolutely. I think like being a mother, Om Publications है जिनकी बुक है काली, सरस्वती, रामा, कृष्णा. मेरे पास मतलब मेरे को वही देनी होती है एज अ गिफ्ट. सो आई ओनली गिफ्ट टू माय सन दीज आर बुक्स एंड ही विल आल्सो. तो वी रीड इट एंड आई थिंक मैंने बहुत vocal, I've been vocal about these facts के include these kind of books as well in your child's, like you rightly said. हम साइंस भी पढ़ाते हैं, हम फन एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं, बट अगर हमारे पास ये गीता और उसमें पंचतंत्र की कहानियां है, उसमें मतलब कबीर है, उसमें बुद्धा है, उसमें हर तरीके की उनको बहुत अच्छी बुक्स हैं. एंड राइटली सेड वो महंगी भी नहीं है और बड़ी मजेदार बुक्स हैं. एंड I felt very connected when you said this because this is what exactly I've been doing from last 5 years now. And again, आपके टाइम में वो जो गोरखपुर, मतलब मेरे टाइम में मैंने तो इतनी पढ़ी नहीं, मैं तो स्कूल की किताबें पढ़ती रहती थी. I think I was too much into my own thing. But आज की तारीख में ओम पब्लिकेशंस है, वो been amazingly doing these kind of books and I think parents should check it out. Again, मेरा next question इसी से related है. So much content out there. Internet तो है, like you said, Peppa Pig, ये वो, टीवी भी फॉर दैट मैटर, मूवीज भी, हम सीरीज भी देखते हैं कभी कभी, अगर हम चला लेते हैं और बच्चे भी घर में आसपास है, वो भी कहाँ पे थोड़ा सा वहां पे
it is becomes a discomfort because not everything is okay for the kids to watch it, of course. uh, how can we ensure that the kids understand Indian culture, our roots, our Vedas in a right manner? Because there is different kind of content which is available, which can Right. be little misguiding as well. And especially I want to talk about the fact that they go to these schools, there are diversity in the culture as well, they and I'm not saying that any culture is any religion is bad or anything, but I'm a Hindu. I want my kid to learn and understand more about Hinduism, and then probably make a right choice which religion you want to opt for, basically. So but because the content is so vast, तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो फ्रॉम हाँ. अदर रिलीजन एंड अदर कंटेंट, आई थिंक सो। वहां वो चीज कैसे हम टैकल करें, कीपिंग देम ग्राउंडेड विद आवर थिंक। देखो, जितने हम एसर्टिव होंगे और जितना हमें हमारे अंदर हमारे कल्चर में कन्विक्शन होगा ना, उतना ही बच्चों को आएगा। ठीक है, अगर हम ही सब कुछ चलता है, सब ऐसा है, सब वैसा है करेंगे तो नहीं होगा। आप आप देखिए ना बाकी में कैसे होता है। मैं तो हांगकांग की बात कर रही हूँ, यहाँ तो चलो अलग बात है, बट इवन हांगकांग में there were Muslim parents who had every Saturday उनके वो रिलीजन से आते थे, लड़का लड़की कोई भी हो बचपन से उनको पढ़ाते थे सीरियसली। ठीक है, there was no getting away from it. Christians have a Sunday school, वो लोग चर्च में जाते हैं, मास के लिए जाना ही होता है, and they go, right? वो लोग डरते नहीं है कि भाई हमारे बच्चों को हम ऑप्शन दे देंगे सब करने का। बड़े होंगे तो आपको देने के लिए वो रुकने वाले नहीं है, वो स्वयं से जो ऑप्शन लेना है लेने ही वाले है ना। बट व्हाट इज आवर कर्तव्य एज अ पेरेंट्स to at least hand them, give them what we come from, right? The heritage which we come from. And I genuinely believe aaj duniya mein, if people understand the Hindu framework, if they understand the Hindu value systems, the world will be a much better place. बिकॉज आप देखिए, हम जो इतना सोचते हैं कि अरे भाई इसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे, सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, ये सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज वी आर हिंदूज, वी आर हिंदू मेजोरिटी, नेवर एवर फॉरगेट दैट, राइट? और कहीं पर ये सारी बातें कि these topics are not done. It's very simple. This is a majority, you are the minority, this is how you live. We define your rules, right? We give you the freedom. We don't think of it that way. We think everything is valid. हम हमारे पूजा गृह में जीसस की मूर्ति भी रखते हैं, and nobody bats an eyelid, right? कि भाई ठीक है, जिसको जो लग रहा है, जहां पर भी आप लग रहे हो। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में भी जाते हैं, करेक्ट, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में भी जाते हैं, वहां हम कहते हैं कि नहीं नहीं आप जीसस की प्रेयर मत पढ़ाओ, वो भी हमको चलता है ना, पर फिर हमारे घर पे क्यों नहीं, है ना? वो हम क्यों बचाते हैं कि नहीं नहीं उनको जो करना है करने दो, ये सब का क्या नहीं। आप अगर उनको छोड़ दोगे तो उनको कैसा कहाँ पता है कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ना? वो तो उतना ही समझेंगे जो और लोग उन्हें बता रहे हैं, अगर आप नहीं बताओगे तो आई थिंक समवेयर the responsibility squarely lies on the shoulders of the parents, first of all, to believe that what they have to offer is good enough. अगर वो ही नहीं है तो और हम क्या ही बात करें? आई एग्री बिकॉज वी एज हिंदुइज्म, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक हमारे काइंड ऑफ एक सोसाइटी का एक तबका है विच स्टिल इज नॉट दैट कन्विंस्ड एंड दे फील नॉट कूल अबाउट द हिंदुइज्म एंड एवरीथिंग अबाउट इट। एंड however this is not the case with Christianity and Islam, because no matter what, they are very reverent towards their religious and they follow it. And again, where do they get answers from? Again, पेरेंट्स तो हमारे जैसे ऐसा नहीं है सब कुछ, बट जैसे मैंने कहा ना कि आप चर्च में जाओगे तो यू हैव अ फादर, यू हैव अ कम्युनिटी who is there to help you, support you. Similarly, when you have teachers coming over or you go somewhere, for Muslims जैसे भी होता है, हम भी if we connect to one of these, बाल विहार की जैसे मैं बात कर रही हूँ, है ना, तो वो आंसर्स एक तो हमें ढूंढने में भी अच्छा रहेगा और हमारे बच्चों को मैनेज करने में, उनको कम्युनिटी फील देने में भी अच्छा रहेगा। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। आजकल सब कुछ हम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए नीड फॉर दीज कम्युनिटीज इज इवन मोर। पहले कैसे था ना, जॉइंट फैमिलीज था, सो वी डिडंट हैव टू वरी, सब कुछ माँ बाप के सर पे नहीं आ गया था। दादा दादी होते थे घर पे और लोग होते थे, कोई तो फैबा बुआ होगी, वो सब होते मंदिर थे। जाना, हाँ जी बिल्कुल, एक सिंपल मंदिर जाना एक रेगुलर चीज था। एग्जैक्टली, पर आज की तारीख में तो कोई मंदिर ही नहीं जाता, मतलब मंदिर जाते हैं तो वो एक नवरात्रि होगा या कुछ हो गया, पर आपका अदरवाइज मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना नॉर्मल है, फ्राइडे को हमें माँ दुर्गा के जाना नॉर्मल होता था, मतलब वो एक पार्ट था आपका रूटीन का कि दादी या मम्मी मंदिर जा रही है। पर हम मतलब मैं वो समझती हूँ, पर एक पर चर्च
they will go for sure. So I think we also need to learn that how they, they're so probably respectful, and they believe in their religion is so much more than ours. I think, The at some level. other thing I will say is कि जब फेस्टिवल्स, हमारे उत्सव बहुत सारे होते हैं, है ना, जन्माष्टमी से लेके रामनवमी से लेके दिवाली से लेके सब कुछ, हम उसमें मजे करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बच्चों को भी बहुत मजा आता है, बट वी नीड टू एंश्योर दैट इज नॉट जस्ट दैट। उसमें भी पूजा हैज टू बी एन इम्पोर्टेंट भाग, है ना, कि भाई उस दिन बैठो, कुछ सुनो, कुछ अलग करो, सब लोग बैठे हैं, नए कपड़े पहने हैं, जो भी, बट लेट इट नॉट जस्ट बी एन आउटवर्ड enjoyment which has to be there, no doubt, खाना अच्छा खा रहे हैं, has to be there, but use this to get educated and also give it to them. use that कि देख भाई, आज हम बैठे हैं पंडित जी के साथ या दादी के साथ या नानी के साथ, कोई भी, और नानी इस आज तो कृष्ण की बात करेगी, रामनवमी में उनकी बात करेगी। आजकल तो आई हैव सीन, इनफैक्ट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस कि कॉलोनीज में बहुत अच्छे से वो लोग, वो साउथ में तो आप देखो सीता कल्याणम करेंगे रामनवमी के दिन, है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इट इज नॉट जस्ट अस इंडिविजुअली, बट वी नीड टू टेक द इनिशिएटिव टू मेक दोस कम्युनिटीज अराउंड अस। मैं जब छोटी थी तो हमारी कॉलोनी में वो गणपति, महाराष्ट्र में गणपति का बहुत बड़ा है, तो 5 दिन दोपहर रात भजन चलेंगे जोर जोर से, एंड देन यू हैव परफॉर्मेंसेस, एवरीबॉडी गेटिंग टुगेदर एंड स्टफ। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंश्योर कि वेरेवर यू लिव, वहां पर भी अगर नहीं है तो आप इनिशिएटिव लीजिए, ऐसा कुछ करने का है तो भाग लीजिए, पार्टिसिपेट। बिल्कुल सही बात। लाइक वी आर मैरिड टू ए बंगाली, सो हमारे दुर्गा पूजा ना, हम एक पूरा वो एक पूरा फेस्टिवल, और हम गणेश चतुर्थी बनाते हैं, तो पूरा बिल्कुल आई थिंक दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम, आवर फेस्टिवल्स वेयर इन वी कैन इम्पार्ट लिटिल नॉलेज, लिटिल डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ आरती करना, कि आपको आरती करनी ही है, आपको पूजा में बैठना ही है, भोग लगेगा तभी खाना खाओगे। ये छोटे छोटे जो रिचुअल्स है, राइटली सेड। आई थिंक ऑल द पेरेंट्स आउट देयर विल मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, कि अब जो हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसको थोड़ा डिफरेंटली दे विल हैंडल विद द किड्स। अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपने उसका जवाब भी दे दिया, बट उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप बताएं, हाउ कैन पेरेंट्स क्रिएट एन होम environment in the home that encourages spiritual growth for the kids, wherein they can lead to? As I said, it has to follow with their own, the example has to come from their own life, their own practices, right? और उनके सामने, ऐसे नहीं कि वो नहीं है तब कर लिया, कि भाई सुबह उठ के आप नमस्कार करके जा रहे हो, चलो एक दिया लगा दिया या ये टीका कर दिया, है ना। तो एक पहली बात तो, अरे बाबा ये टीका कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर स्कूल्स में ऐसा कह रहे हैं तो आई जेन्युइनली बिलीव इंडियन पेरेंट्स नीड टू स्टैंड अप एंड टेल देम, ठीक है। टीचर्स भी जो है वो कोई बाहर से थोड़ी है, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोसाइटी ना, जिनको लगता है हिंदू सिंबलिज्म इज ऑल बैड, नहीं होना चाहिए, व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो ensuring that even visibly there are some symbols of Hindu, ये जो पहने वो पहने, कि कलेवा आपके यहाँ पूजा हुई है तो कलेवा बांधते, चलो वो तो लोग वैसे ही करते हैं, but ensure it happens regularly, right? So जो हम करेंगे वो बच्चे करेंगे, पहली बात तो वो है। But it is not just about rituals. As I said, it has to be everything. What kind of books you read to them, what kind of serials they watch, है ना, क्या क्या topics, कौन सी बात होती है, classes कैसे कैसे जाते हैं। अच्छा, classes में भी जरूरी नहीं है कि वो केवल अध्यात्म के क्लासेस जाए, है ना, उनको पियानो क्लासेस भेजा जाता है, यहाँ भेजा जाता है, वहां भेजा जाता है। Our art is also so rich. Can we ensure of the 5 classes they are going or 5 sports they are doing, probably one of them is related to ours. अगर sports करना है तो कलारी कराए, है ना, कलारी is very active, but you will be rooted in that. वो जिस प्रकार नमन कराएंगे पूरा, and it's great, right? You will be rooted back to परशुराम जी, जहाँ से वो आया हुआ है. You will hear those stories. या क्लासिकल डांस सीख रहे हैं, है ना. इनफैक्ट आप देखिए, जो मिडिल क्लास छोड़ दो, पर जो सुपर एलीट होते हैं ना, उनके बच्चे तो सीखते हैं. आप अंबानी और उन सबको देखो, हमारा क्लास है जो भी, हम लोग ये भी नहीं करते, कहीं वो धोबी के कुत्ते जैसी हमारी आदत हो गई है ना, यहाँ के वहां के बनना चाहते हैं ना, यहाँ के बन पाते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो one of these things, like, can you pick up music? So music में can you also take classical or Indian classical dance, whatever, right? Whatever art में है तो can you take one of ours? Understand some of them. The way you dress, very right? important. Could be festival based only, but हाँ, बच्चों को वो traditional dress पहनना है. घर पे again, when you are wearing sarees and you are dressed like, you know, हमारे इसके, they'll see it, they'll get used to it, they'll want to do it. बड़े होके सब बोलेंगे अरे क्या है, बट बच्चियों को देखो, उनको होता है कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे बैंगल्स भी पहननी है, मुझे साड़ी भी पहननी है.
Of course, this is not adhyatma, this is very outward. But these are the which things will lead which keep them to, connected yeah, to the culture, right? Because what is culture? Of course, it's the value system about how you live. And it has symbolicisms, it has dress, it has food, everything. yeah, rightly said. I think we just need to probably as parents retrospect and see what so much is there खाने को लेके and पहनावे को लेके music, everything is so enriched, and again those roots comes to the Indian culture and Hinduism. Like मैंने अपने बेटे को हमेशा बोला हुआ है, very funny thing, but मैं जब भी तैयार होती हूँ मैं बोलती हूँ कि how I am looking, वो कहेगा त्रिपुर सुंदरी. So I अरे have, वाह! मैंने मतलब मैंने उसको बोला हुआ है, मैंने I have told him the story. ओके मैं पढ़ रही थी अपना महाविद्या के बारे में, सब चीज मैंने सब बताया हुआ है, तो मैंने बोला whenever I get ready शिवन मुझे बोला कर mama will ask you how do I look and you have to do त्रिपुर सुंदरी. So just I just wanted to tell her that there are, मैं उसको इतना कुछ बताना चाहती हूँ कि these are the books that you can dive in and read which will make you better person, but these are the keywords that I'm just giving him कि उसको याद रहेगा त्रिपुर सुंदरी मम्मा ने मुझे बचपन में बोला था, मे भी बड़े होके पढ़ेगा कुछ समझेगा तो वो होगा. तो लाइक यू सेड ना कि पहनावे को तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि आई टेल शिवेन टू कॉल मी त्रिपुर सुंदरी, सो वो बड़ी अच्छी बात है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टेक्नोलॉजी जिसकी आपने बात भी करी है. सारे बच्चे आजकल लाइक there's a बहुत अच्छी भी चीजें हो रही हैं टेक्नोलॉजी से, they are getting influenced, they are getting knowledgeable, but how technology plays a role in child's spiritual development, in terms of कैसे हम उसको एक अच्छा मतलब एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और how as a parent we should tackle that. Again, I think आज तो thanks to technology, it's become much easier. Multimedia पे content का तो भरमार है ना? जैसे a friend of mine, he started this thing called Indic Roots, जिसमें ये जो games होते हैं ना, जो apps वगैरह होते हैं, तो games are Indic based. In the sense, एकदम बच्चों के लिए ABCD, ठीक है? English है ABCD तो पढ़ाओगे, but A से हम एप्पल कहते हैं नहीं, उसके उसमें A for अर्जुन, फिर A for whoever else, तो ऐसे 5-6 ऑप्शंस है ना. तो उस प्रकार का उसने करा हुआ है ऐप के अंदर, बी से बी से होगा उस प्रकार से सारा. साथ साथ गेम्स है कि अच्छा तो वो मैचिंग कराना होता है ना, मैच दिस टू दिस, बच्चों के लिए तो सिंपल सिंपल होता है. तो से अच्छा ये डांस है, ये डांस फॉर्म है, ये क्लॉथ, इसका ड्रेस ऐसा है, और ये डांस है कौन सा, मंदिरों का वैसा किया हुआ है. दैट्स अदर इम्पोर्टेंट थिंग. हम इतनी सारी जगहों पर जाते हैं, घूमने ले जाते हैं, वेकेशन कराते हैं. एंश्योर यू गो टू वन ऑफ दीज तीर्थ स्थान. आजकल तो तीर्थ स्थानों में बहुत अच्छा हो गया है, दे लाइक इट, है ना, एंड दे सी हाउ थिंग्स हैपन, प्लस दे सी हाउ नॉर्मल पीपल लिव, है ना, कि भीड़ भी होती है, गर्मी भी होती है, धक्का मुक्की भी होती है. ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट. हमारे टाइम पे किसी को कहना नहीं पड़ता था कि वहां लेके जाओ, क्योंकि हमारे लिए यही नेचुरल था. दैट वाज द नॉर्म. वेकेशन का मतलब ही तीर्थ स्थान जाना था, मतलब वही थे हमारे वेकेशन. एग्जैक्टली. और इवन अदरवाइज लाइक मोस्ट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, ऐसा कुछ इतना ऐशो आराम नहीं था, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. रिक्शा जाना है, चल के जाना है, ये सब नॉर्म था. आजकल तो वैसा नहीं है, स्पेशली एक सर्टेन सेगमेंट के बच्चों के लिए, अधिकतरों के लिए. So when they go out, stand in the line, that is also something connecting to what reality is. यार उनको पता तो चले life is not all roses, bed of roses. Absolutely. और साथ ही that connection, you never know किसके साथ क्या connect होता है. तो that is also important. But anyways, coming back to technology, तो गेम्स इस प्रकार के हैं. अब जो वीडियो गेम्स है उसमें ही इज कमिंग अप विद महाराणा प्रताप वाला वीडियो गेम. या फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है वो जो उसका चल रहा है. ऐसे बहुत सारे हैं आजकल. मेनी ऑफ देम आर कमिंग अप विद ऑल दीज काइंड्स ऑफ ग्रेट कंटेंट. इट इज जस्ट अबाउट सीइंग, चेकिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स जब ऐसा व्हेन देयर इज इतना आउटबर्स्ट होता है तो बहुत कुछ चला जाता है उसमें, कचरा भी साथ साथ हो जाता है. तो फिल्टरिंग दैट आउट इज इम्पोर्टेंट, एंड वो तो आपको ओवर टाइम समझ आ जाएगा. बट बहुत कुछ है. एप्स आजकल तो इट इज इम्पॉसिबल टू से बच्चों को फोन ना दो, वो तो दोगे ही, पर फिर क्या दो उसमें. कैन इट बी सम ऑफ दिस दैट कीप्स देम कनेक्टेड. सो ऑफ कोर्स आई थिंक एक स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, दे हैव देयर ओन, पर उसपे हम अगर बस एक फिल्टर लगा दे कि व्हाट दे आर वाचिंग वी नो एंड वी कैन गिव देम अ कीवर्ड्स वॉच दिस, आई थिंक वहां पे वो एक बैलेंस आउट हो जाती हैं चीजें, बिकॉज वी कांट रियली रिफ्रेन देम. और मुझे लगता है जितना मना करते हो बच्चों को उतना उनकी उतना उनको कहीं अब ये तो पता नहीं क्या ही है, उसको हम अब बना कर दिया तो ये तो मतलब इसको तो चीड़ फाड़ करके उसके अंदर जाना ही जाना है. तो ये तो मुझे लगता है कि मना करना एक से दूसरी बार अगर आप समझा नहीं रहे हो तो it becomes a problem for the kids. Last question, I think religion and spirituality is different, which you have also talked about. How a parent
should act ideally if the children is, if we want the child to follow us, or our religion, what And would be an actually, ideal for parents? Hindu Dharma, Yeah, I don't think religion and spirituality is that correct. different. True. You eventually end up into Adhyatma, but it starts with your overt practice. True. ठीक है, विट इज धर्म और रिलीजन, जिसे आप कहो रिलीजन और अध्यात्म में क्या फर्क है? रिलीजन इज मोर अबाउट द रिचुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? एट दैट लेवल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सोशल स्ट्रक्चर्स, रूल्स, रेगुलेशन, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, है ना? मैं पूजा पाठ और उसकी बात कर रही हूँ। बच्चों के लिए उस वही रास्ता है, इवेंचुअली डिसिप्लिन और अध्यात्म वो सब समझने के लिए। अभी से आप उनको उपनिषद पढ़ाओगे तो उनको कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि उपनिषद भी जब बच्चों की बाकी पढ़ाई हो जाती थी ना, उसके बाद बताया जाता था, व्हेन दे आर इन अ सर्टेन लेवल। पहले तो वो फिजिकल से ही शुरू होता है। इवन आप गुरुकुल पद्धति देखें जो गुरुकुल में होता था, तो कैसे होता था? पहले उनको हार्डकोर चैंटिंग, है ना? समझ ना आए तो भी चैंटिंग कराना है, समझ ना आए तो भी वो प्रोसेस कराना है, बिकॉज फिजिकली यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड गेट यूज्ड टू इट। जो सेकेंड लेवल इंटेलिजेंस है वो तो बाद में डेवलप होती है ना, एज दे ग्रो अप अ लिटिल बिट। तो वी रियली डोंट नीड टू सेपरेट द टू, एंड लेट्स नॉट बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट। इट्स ओके, हमारा ये है, हम ऐसे ही सिखा सकते हैं। How as a parent, we should behave, in terms of, so that it's not just the show, मतलब सबका बिलीफ सिस्टम अलग है, सब चीजें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर एक बच्चा और अ ग्रोन अप, मे बी इन 50, और या इनिशियल टाइम से ही उसके अंदर एक थोड़ी सी एक वो स्पिरिचुअलिटी या वो तत्व रहता है, तो वो मुझे लगता है ही विल बी एबल टू डील विद लाइफ इन अ वेरी बेटर वे, पॉजिटिव वे, maybe challenges, work life balance, relationships. I think that makes him a more stronger person. So I think the entire objective of spirituality as a mother for me is probably not, मतलब अगर वो संत महात्मा भी बन जाए तो उसमें बहुत अच्छी बात है कि वो विश्व का दुनिया का वो कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट ही शुड बी able to understand and have that slight detachment from the real world, and वो चीज आ जाए तो वो आएगी 25-26 साल में, और वो एकदम से, खैर ये भी बात है कि एकदम से भी आ जाती है, जिसको आनी होती है, अगर भगवान की कृपा हो तो एकदम से। वो तो संस्कारों की बात है। हाँ, but initially हम ऐसा घर में as a parent what should we do, like 2-3 pointers if you can just sum it up and tell us that these are the key areas that which will help the kid to become a better, stronger person mentally, to tackle it. एक तो द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग प्रेयर एंड इन्वॉल्व प्रेयर, नॉट जस्ट बोलने के लिए बोलती हो, ठीक है? और कौन सा? टेक अ कपल ऑफ श्लोकास। अच्छा, आज क्या हो गया ना, वी डोंट ऑलवेज हैव दैट प्रोसेस, बट पहले कैसे होता था कि उपनयन होता था, एटलीस्ट जहाँ जिनका अधिकार होता है उनका उपनयन होता था, और उनको वो लोग गायत्री मंत्र होता था, एटलीस्ट लड़कों का, है ना? एंड दे वुड देन एंश्योर कि सुबह दोपहर शाम या एटलीस्ट एक बार तो वो करे एज अ प्रैक्टिस। जनेऊ पहनते है ना, जनेऊ पहनते, और वो जो उनको वो गायत्री मंत्र का कहा जाता है, गायत्री मंत्र itself, the shloka chanting itself has an emotional and mental impact. आजकल वो नहीं है, so we have to do it, मतलब we don't always follow that process. नहीं तो घर पे आप देखते थे दादा पापा सब लोग कर रहे हैं, और उनके दिन पूजा वूजा में जो मम्मी आए वो भी हेल्प करती है। आज तो ऐसा भी नहीं है, आज तो बहुत सारे संप्रदाय जो है, फिर वो चिन्मय मिशन हो गया या गायत्री परिवार हो गया, दे ओपनड इट अप फॉर गर्ल्स इज वेल, है ना? तो कैन बी एंश्योर कि भाई एक आध तो मंत्र तो बता दे बच्चों सोने से पहले, जाग कर, है ना? और उनके अर्थ के साथ कि भाई आप उठ रहे हो तो सबसे पहले आपको भगवान को याद करना है, और हमारी तो वो भी प्रार्थना है ना कि जमीन को टच करने से पहले आप भूमि माता को क्षमस्व कहते हो, देन आप शुरू करते हो। खाने से पहले खाने को नमस्ते करते हो, और ये हमारे भी क्रिश्चियंस वगैरह भी आप देखोगे, है ना? सो सम ऑफ दीज थिंग्स मुझे लगता है फॉलो करते हैं, है ना? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ देयर इज वन थिंग व्हिच दे शुड डू, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कि भाई उनको ये पता चले कि सब कुछ आपके बाप का नहीं है, यू हैव टू लर्न टू हैव ह्यूमिलिटी एंड बी ग्रेटफुल। पहली बात तो वो है। दूसरा, हाउ मच एवर यू कैन अफोर्ड, there needs to be discipline in certain activities and things. They have to learn no, right? They have to learn certain things which cannot happen, certain things which happen however bad it is or however bad they feel about it, है ना? तो और वो सिर्फ उनके लिए आप करते हो ऐसे नहीं है, आपके लिए हमारे प्रैक्टिस में भी होना चाहिए। जब हमारी प्रैक्टिस में होगा तो स्वयं से ही सीख जाएंगे।
And the third thing, as I just going back to what I had said, ensure they are part of some community. Chinmay Mission, RK Mission, whatever you think, right? किसी किसी का संप्रदाय स्पेसिफिक होता है कि अच्छा कोई कोई मानते ही स्वामीनारायण में तो उनका ग्रुप होता है, या किसी इस्कॉन वाले हैं तो उनका वो होता है. रामकृष्ण परमहंस उनको इसमें मानते हैं. करेक्ट करेक्ट. पर उसके अलावा जो वैसा नहीं है, who wanted little more diverse in its culture, चिन्मय मिशन है या सम ऑफ दिस, राइट? या संघ के बाल विहार होते हैं, वो तो और भी है. बेसिकली दैट वे टॉकिंग स्टोरीज, दे आर टॉकिंग इतिहास, दे टॉक अबाउट राजाज, महाराजाज, रानियां एंड ऑल दैट, राइट? गुड इनफ. या आपके इधर ऐसा कोई है, कोई दादी है, नानी है, कोई अंकल है, जो भी, who is willing to get bachas together and discuss some of this, that's also fine. So I think that is also very 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 important, rather than trying to take everything on our head. So I think these two three things are good start at least. Absolutely. बाकी तो हर बच्चे का अपना फ्यूचर होता है, अपना प्रारब्ध होता है, आगे चल के वो क्या करे वो तो अलग बात है, बट एज पेरेंट्स इतनी बातें हम कर सकते हैं. बिल्कुल, हम एज पेरेंट्स जो थोड़े बहुत उनको टूल्स दे सकते हैं, आई थिंक वो ही हम अगर अच्छे से दे पाए हमारी अपनी कैपेसिटी में फुल फ्लेजेडली, और एक काइंड ऑफ नज कर पाए, दैट्स आई थिंक मोर देन इनफ एज अ पेरेंट टू डू. बिकॉज आई थिंक व्हेन यू हैव अ किड, सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक दूरदर्शिता में देखने से कि आपका बच्चा जो है विदाउट यू ऑल्सो स्टे स्ट्रॉन्ग. सो वो जो एक डर होता है, वो जो फियर होता है, आई थिंक वो बड़ा सारे पेरेंट्स को मुझे लगता है बड़ा वो ही एक डर है जो शायद हमें इन्वॉल्व करता है कि हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, बिकम स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड लर्न टू लिव इन अ बेटर वे. एंड थैंक यू सो मच आमी जी. मतलब मैं तो आपसे और 1 घंटा बात कर सकती हूँ, बट आई थिंक ये लाइव इसका 1 घंटे का ही टाइम होता है, ये अपने आप ही चला जाएगा. इट इज सच अ लवली conversation, and I really don't want to end this, and I want to talk about it more, and I think my audience is also loving it. Agar if you are free next time, we will also talk about some of your books that you have written in terms of राम जी की कहानियां, कृष्ण जी की कहानियां, कुछ आपके जो श्लोक जो आप चाहें, मतलब हमें बताना चाहें, वो चीजें भी, जैसे हम जो कोई साधना शुरू कर रहे हैं, कैसे करें, जो बेसिक हम लोगों के एक क्वेरीज और प्रॉब्लम्स होती है एक लेमन के एस्पेक्ट से. आई थिंक इफ यू कैन बड़ा मजा आएगा उस कॉन्वर्जेशन में भी. एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो थैंकफुल for you agreeing on my live session and coming and talking on this topic. Thank you so much. And thank you for having me. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely chatting with you.